Good morning, everyone. My name is Hemlata Yadav, and we were discussing biotechnology, subject biotechnology, chapter 2, protein sequencing. And in that, we have discussed the basics of the protein folding and the hierarchy of the protein structure. That the simplest structure are the primary structure, which contain only the single chain of amino acids. Then the secondary structures, which has helically twisted amino acids chain in alpha helix and beta pleated sheets. Then we have discussed the chapter 2 about the types of the bondings, the hydrophobic bonds, the van der Waals forces, these type of four types of bonds, hydrogen bonds we have discussed, and also hydrophobic interactions, ionic bonds. So ionic hydrogen, hydrophobic interactions, and van der Waals forces are the four types of bonds which are helpful in the protein folding. Structure function relationship, we have discussed chymotrypsin, a proteolytic enzyme that it is produced by the pancreas and it's released in the duodenum, and it is known to cleave the aromatic hydrocarbon chains, heavy groups of the proteins, and into the small fragments. So it by it is only removing the hydrocarbon chains, because it is having the active site which is also hydrophobic in nature. The enzyme chymotrypsin, made up of linear chain of 245 amino acids, that we have discussed के इस chymotrypsin enzyme में 245 अमाइनो एसिड की चेन होती है, और जो इंटरप्टेड इनटू थ्री पेप्टाइड यूनिट्स एबीसी में ये बने हुए थे पेप्टाइड यूनिट्स में, और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस एंजाइम का थ्री इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स की वजह से बन पाता है। उनकी पोजीशन लिखी हुई है हेज 57, एस्पार्टिक 102 एंड सीरीन 195, जो पास आ जाते हैं फोल्डिंग के दौरान, तो इस वजह से चार्ज रिले सिस्टम की वजह से ये कॉइल हो जाते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में। एंड हिस 57 मेक्स अ गुड partial hydrogen ion loss to aspartate by attracting a hydrogen. इस 57 सबसे पहले हाइड्रोजन आयन बनाता है, क्योंकि वो एक हाइड्रोनियम आयन को अट्रैक्ट करता है, और एच हाइड्रोजन आयन को बोरो करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है फ्रॉम द एडजेसेंट सेरीन 195, एंड थ्रू दिस हिज 57 रेसिड्यू मच लाइक रिले रेस की तरह काम करता है। फिर ये बैटन को पास करता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर में, एंड द डिफरेंस हियर बीइंग दैट द बैटन इज चार्ज, हियर चार्ज इज एक्टिंग एज अ बैटन। जैसे रिले रेस में हम एक दूसरे को बैटन पहुंचाते हैं और फिर रेस चलती है, एक पर्सन भागता है, वो बैटन लेकर दूसरे को देता है, फिर दूसरा उस बैटन को लेकर भागता है और फिर वो तीसरे को देता है, टीम के मेंबर्स को देना होता है। इस तरह से हिस 57 की सीरीन 195 की एक रिले रेस चल रही है, और इसमें थ्री एस्पार्टेट 102 भी एक अमीनो एसिड है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सीरीन रेसिड्यू का एसिडिक नहीं होता, पीके उसका 12 है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सीरीन रेसिड्यूज। कोई भी सीरीन यहाँ पर एसिडिक नहीं होगा, ओनली सीरीन 195 एसिडिक हो जाता है ड्यू टू यूनिक कॉन्स्टलेशन ऑफ द थ्री अमीनो एसिड रेसिड्यू, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन हैज फोल्डेड यूनिकली इन द स्पेस। फोल्डिंग की वजह से सीरीन जो 195 वाला है वो एसिडिक की तरह बिहेव करने लगता है। नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एनायन इज एबल टू मेक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन the peptide bond and its substrate, loosening it, and so the water molecule can hydrolyze the bond. The specific site of chymotrypsin, we call the enzyme is specific to aromatic residues, is a large space created, और large space create हो जाती है वहां पर within the enzyme active site, or and lined by the hydrophobic residue, therefore allow bulky aromatics हाइड्रोफोबिक चेन टू बाइंड। और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी सी हाइड्रोफोबिक साइट क्रिएट हुई है एक्टिव साइट पे, तो ये हाइड्रोफोबिक सबस्ट्रेट्स को बाइंड कर सकता है। एंड इन chymotrypsinogen substrate binding site is blocked, and hence the enzyme is inactive। chymotrypsinogen में substrate binding site block हो रखी होती है। In situ activation of trypsin involves proteolytic cut in chymotrypsinogen,
और फिर प्रोटीलाइटिक कट लगता है काइमोट्रिप्सिनोजन पे विच रिजल्ट इन द कन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज होता है, एक्सपोजिंग द सबस्ट्रेट टू बाइंडिंग पॉकेट, और वो सबस्ट्रेट को बाइंडिंग पॉकेट में एक्सपोज कर देता है। इंटरेस्टिंग ये है कि नेचर ने ऐसे यूजफुल फोल्डिंग पैटर्न्स को हम ऐसे प्रोटीन लाइटिक एंजाइम्स में सब में बनाया है। इट्स रिपीट दिस इज इन वेरियस वेराइटी ऑफ एंजाइम्स एंड ट्रिप्सिन में भी इस तरह का ही फोल्डिंग पैटर्न है, सबटिलाइजिंग में भी, जो कि एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, बीटा सब बैसिलस सॉरी बैसिलस सबटिलिस में बैक्टीरियम है जो, उसमें भी ये एंजाइम है प्रोटीलाइटिक एंजाइम, उसमें भी सबटिलाइजिन में सेम तरह का फोल्डिंग पैटर्न देखा जाता है। थ्रोम्बिन ये प्रोटीलाइटिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, और ब्रेन एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, दिस इज आल्सो हैव अ रिएक्टिव serine residue in central to catalytic mechanisms. Charge relay transfer in chymotrypsin R2 aromatic amino acid, R1 any other amino acid. Certain organophosphate compound has been selectively react with an acidic serine residue, thereby knocking off enzyme activity. कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड होते हैं जो सिलेक्टिवली रिएक्ट करते हैं एसिडिक सीरीन रेसिड्यूज से, और देर बाय उनकी एक्टिविटी को नॉक ऑफ कर देता है, क्योंकि सीरीन की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब सीरीन की एक्टिविटी नॉक ऑफ होती है तो एंजाइम की भी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। प्रोटीलाइटिक एंजाइम की नर्व गैस इस तरह की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज करी थी, जिसमें एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम की सीरिंग एक्टिविटी को नॉक ऑफ करके लोगों के को डेथ कर दी थी। नाउअडेज ऐसे डेरिवेटिव है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के मैलाथियोन पैराथियोन नाम के, ह्यूमन के लिए तो टॉक्सिक नहीं है पर मॉस्किटो रेपेलेंट है, मॉर्टिन गुड नाइट, और उनके भी नर्व ट्रांसमिशंस को ब्लॉक करके वो उन्हें मारते हैं। मॉलिकुलर डिजीज सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया डिजीज प्रेवलेंट पार्ट में है, प्रेवलेंट है अफ्रीका के पार्ट्स में, और रेड ब्लड सेल्स पेशेंट्स हैव प्रोनाउंस्ड morphological change and resemble the shape of farmer sickle, and thus the name this disease, because these unusual shaped red cells have impaired oxygen carrying capacity, further get stuck in the small capillaries, they lead to anemic conditions observed in the patient। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप बिगड़ जाता है, वो सिकल की तरह हो जाता है, जो कि फार्मर जो सिकल यूज करते हैं काटने के लिए, दराती यूज करते हैं जो आपको पता है इस शेप की होती है, तो आरबीसी भी सिकल के शेप के हो जाते हैं। एंड ये आरबीसी कम इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, और ये स्मॉल कैपिलरीज में फंस भी जाते हैं, और इनकी वजह से ये एनीमिक कंडीशन कर देते हैं पेशेंट्स में। इंटरेस्टिंगली सच सिकल सेल आरबीसी रेजिस्ट द मलेरियल इन्फेक्शन, ऐसे आरबीसी में एक क्वालिटी जरूर होती है प्लस पॉइंट की, ये मलेरिया के रिएक्शंस मलेरिया के इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट होता है। सम सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली फॉर मलेरिया टू बी को प्रिवलेंट विद सिकल सेल एनीमिया, तो इस वजह से जहां पर मलेरिया ज्यादा होता था उन कंट्रीज में सिकल सेल एनीमिया को इवॉल्व हो गया, को प्रिवलेंट हो गया, और वहां पर लोगों को ज्यादा मलेरिया मच्छर से बचने के लिए एक एडवांटेज मिल गया, पर सिकल सेल एनीमिया उनमें ज्यादा हो गया। वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया वाज द कंपेयर द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन SCHB। सो पहला अटेम्प्ट था मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ने का सिकल सेल एनीमिया का, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पढ़ी गई दोनों प्रोटीन्स की, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की भी और सिकल सेल हीमोग्लोबिन की भी, ऑन फाइंडिंग दैट HB मूव्स फास्टर देन द SCHB। ये पता चला कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा तेज चलता है, फास्टर चलता है देन द सिकल सेल हीमोग्लोबिन। लिनस पॉलिंग ने फिर प्रिडिक्ट किया दैट द लेटर डिफर्ड इन द चार्ज अमीनो एसिड, तो वो जो सिकल सेल अमीनो एसिड्स है ये इसके चार्जेस की वजह से, और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन दोनों ही अमीनो एसिड के चार्जेस की वजह से
इनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी अलग है। दिस वाज कंफर्म्ड बाय W.M. इंग्राम। 1957 में ये कंफर्म कर दिया गया, हु पायनियर्ड अ यूजफुल टेक्निक कॉल्ड एज प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग। प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग उसने V.M. इंग्राम ने 1957 में जब टेक्निक का इन्वेंशन किया तो उसे पता चला कि लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कैम्ब्रिज में यूके में उसने ये डिस्कवर किया। तो लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी LMB हैज बीन द मेका फॉर प्रोटीन सीक्वेंसिंग, DNA सीक्वेंसिंग, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, डिडक्शन of the double helix structure of the DNA, hybridoma टेक्नोलॉजी, निमेटोड डेवलपमेंटल स्टडीज। ऐसी LMB जो लैब है, लेबोरेटरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कैम्ब्रिज में, वो इन सब के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो कि इस फील्ड में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे इन्वेंशन अब तक कर चुका है। यहाँ पे बहुत सारे चीजें दी हुई हैं, जैसे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, DNA सीक्वेंसिंग, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, डबल हेलिक्स, ये सब वहाँ पर डिस्कवर हुए हैं। निमेटोड डेवलपमेंटल स्टडीज भी यहाँ पर हुई हैं। स्टैब्लिश करी गई थी ये लेबोरेटरी 1952 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्स पेरेट्स, रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। मैक्स पेरेट्स ने नोबेल प्राइज पाया था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताने के लिए। दिस इंस्टीट्यूशन हैज प्रोड्यूस 9 नोबेल प्राइज विनर्स। इस इंस्टीट्यूशन ने नोबेल प्राइज विनर्स को बनाया है, प्रोड्यूस किया है। प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग, पेप्टाइड मैपिंग। प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, तो अब आइए हम इसको समझें। प्योर HB और सिकल सेल HB में को सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। यहाँ पर 2D एनालिसिस किया जाता है पेप्टाइड्स का किसी भी प्रोटीन से, एंड ये फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है प्रोटीन के लिए। मतलब यूनिकली उसका 2 डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पर होता है इस मेथड के थ्रू। पहला कि हम दोनों तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, और हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन को ले रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करवाते हैं फिर प्रोटीलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन से, विच क्लीव्स द प्रोटीन आफ्टर बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू आर्जिनिन एंड लाइसिन। वो इन अमाइनो एसिड को आर्जिनिन और लाइसिन के बाद कट कर देगी। जहां पर भी आर्जिनिन लाइसिन होंगे वहां पर ये कट प्रोड्यूस करेगी, और बेसिक अमाइनो एसिड पे ही कट प्रोड्यूस करती है क्योंकि ट्रिप्सिन। Two separate strips of Whatman filter paper are spotted with HB and SCHB tryptic peptides। जो ट्रिप्सिन ने पेप्टाइड्स बनाए हैं, फिर उसको उन पेप्टाइड्स को वॉटमैन फिल्टर पेपर पे स्पॉट करके लगा दिया जाएगा, और अब सेपरेट करा जाएगा इनको पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस से। पीएच पे 2.0 पीएच पे हाईली चार्ज पेप्टाइड विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड एंड कैथोड। हाईली चार्ज पेप्टाइड इधर की तरफ मूव करेंगे, एनोड और कैथोड की तरफ। द पेपर स्ट्रिप्स आर ड्राइड अटैच्ड टू द लार्जर squares of the Botman paper and chromatographed at the right angle to the electrophoretic direction। पेपर स्ट्रिप को ड्राई किया जाएगा, अटैच किया जाएगा लार्जर स्क्वायर में बॉटमैन पेपर के, और क्रोमेटोग्राफी करी जाएगी राइट एंगल पे टू द इलेक्ट्रोफोरेटिक डायरेक्शन यूजिंग अ सॉल्वेंट सिस्टम, ब्यूटेनॉल, वाटर, एसिटिक एसिड। ब्यूटेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड का मिक्सचर बनाया जाएगा। इन सच अ सिस्टम पेप्टाइड system peptides will separate based on the partition coefficient between the solvent and paper। और पार्टीशन कोफिशिएंट के हिसाब से वो पेप्टाइड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिवली हाइड्रोफोबिसिटी। और ये हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पे सेपरेट होंगे। विल मूव विद द सॉल्वेंट एट द लॉन्गर डिस्टेंस। जैसे हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, सेम वे में ट्रिप्टिक पेप्टाइड्स की क्रोमेटोग्राफी हो रही है। तो हम ट्रिप्टिक पेप्टाइड्स को भी पेपर पे स्क्वायर ब्लॉक पे लगा देते हैं। एक हमने पेपर लिया, उसको हमने ट्रिप्टिक पेप्टाइड्स को यहाँ पर लोड कर दिया, सैंपल को एक यहाँ पर एक दूसरे उसमें, और फिर हमने इनको छोड़ दिया यहाँ पर दोनों को पेप्टाइड्स को लगाकर, और सॉल्वेंट में रन करवाया। सॉल्वेंट इनको दिया हमने ब्यूटेनॉल, वाटर, और यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटेनॉल, वाटर और एसिटिक एसिड, इनका तीनों का सॉल्वेंट दिया, जिसकी वजह से इसमें जो भी हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड्स हैं
वो मूव करेंगे सॉल्वेंट टू लॉन्गर डिस्टेंस। अगर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज इसमें है तो वो दूर दूर तक ऊपर इसमें रन करेंगे, सॉल्वेंट इनके वो अंदर मतलब कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करेगा, तो सॉल्वेंट पेपर में भी राइज करेगा और सॉल्वेंट इनको पूरा डिसॉल्व करता हुआ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज को ऊपर ले आएगा। मोर हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड्स विल मूव टू द सॉल्वेंट टू द लॉन्गर डिस्टेंस। ज्यादा हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड्स होंगे तो वो ऊपर लॉन्गर डिस्टेंस तक जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आगे के स्टेप्स। द क्रोमेटोग्राम्स आर ड्राइड। क्रोमेटोग्राम को ड्राई करा जाएगा, स्टेन किया जाएगा सुटेबल विजुअलाइजिंग रिएजेंट से, लाइक निनाइड्रिन। निनाइड्रिन से उसको स्टेन करके देखेंगे कि कहाँ पर कलर आया है। द पेप्टाइड मैप फॉर एच बी एंड एस सी एच बी आर कंपेयर्ड। दोनों के लिए पेप्टाइड मैप को कंपेयर किया जाएगा। And it was found that one peptide was differently placed in the SCHB map। और पता चलेगा कि एक पेप्टाइड डिफरेंटली प्लेस होता है, अलग होता है SCHB से। On examining this peptide, the determining its amino acid sequence, Ingram found that it had a valine substitution for glutamic acids in the peptide। तो इसको देखने के बाद पता चला इंग्राम को कि वहां पर वेलिन सब्स्टिट्यूशन था, ग्लूटामिक एसिड और वेलिन सिंगल सब्स्टिट्यूशन था, और सिक्स पोजीशन पे था हीमोग्लोबिन बीटा चेन में ड्रामेटिकली चेंजेस। तो आपको पता ही है सिकल सेल एनीमिया सिक्स पोजीशन पे वेलिन और ग्लूटामिक एसिड अलग होता है। तो ड्रामेटिकली इससे स्ट्रक्चर ऑफ SCHB बदल जाता है फ्रॉम फाइबर्स विद इन द आरबीसी, रिजल्टिंग इन द डिफॉर्मेशन ऑफ सेल सिकलिंग। Since the disease was due to molecular alteration, the term molecular disease was applied। क्योंकि molecular alteration था इस बीमारी का कारण, एक इसमें प्रोटीन का अमीनो एसिड बदल रहा था सिक्स पोजीशन पे, तभी इसी डिजीज को मॉलिकुलर डिजीज बोला गया। ठीक है, जेनेटिक डिजीज तो है ये, पर मॉलिकुलर टाइप की डिजीज है बिकॉज इसमें मॉलिक्यूल्स में चेंज आया। Then provide peptide mapping became useful technique to compare the similar proteins from different sources। अलग अलग सोर्सेस से मिले हुए सिमिलर एक ही तरह के प्रोटीन को इसमें स्टडी करा जाता है। Slowly the information become too fast and the computers were used to store this data into databases so that the homology searches could be made। The protein fingerprinting data has been further augmented with a new database containing two true electrophoresis pattern of entire proteins from a given type। A technique was developed by O'Farrell। यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन उसमें से निकाला है, वहां पर सिकल सेल आरबीसी दिया उसमें से हीमोग्लोबिन निकाला है। दोनों को ट्रिप्सिन से ट्रीट किया है, हीमोग्लोबिन क्लीव हो गया स्मॉल पेप्टाइड में प्रोटीएज ट्रिप्सिन से, और ट्रिप्सिन ने ब्रेक कर दिया पेप्टाइड बॉन्ड्स को एडजेसेंट टू अ लाइसिन और एन आर्जिनिन। एंड पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई है, पेपर क्रोमेटोग्राफी करी है, फिर पहले पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करी है, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी करी है, एंड जिससे रिजल्ट आया है कि सारे पेप्टाइड सिमिलर हैं फ्रॉम बोथ एग्जाम्पल एक्सेप्ट वन मार्क्ड ब्लू। ब्लू कलर का एक पेप्टाइड है वो अलग है, एंड वो दिख रहा है सिकल सेल में कि वो अलग गया है। पेप्टाइड सीक्वेंसिंग, प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग हमें मिल गई। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू डिफरेंट टेक्निक्स आर कंबाइंड इन दिस प्रोसीजर, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड SGS पेज। सो इस वजह से टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला गया क्योंकि टू टेक्निक इसके अंदर इम्प्लीमेंट करी गई है। एक आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करी गई है, एंड वन इज द SDS पेज किया गया है, सोडियम डाइडोसाइल सल्फेट पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड in simple electrophoresis, the mobility of protein is due to their charge, which is pH dependent। सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई भी प्रोटीन अपने चार्ज की वजह से मूव करता है कहीं पर भी, और जो पीएच डिपेंडेंट होता है। एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, PI जो होता है, प्रोटीन डू नॉट पोजेस एनी चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं आता और वो मूव नहीं करता इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फीचर इज एक्सप्लॉइटेड इन द टेक्निक ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, which separate the protein on the basis of their different PI values। Isoelectric focusing
पीआई वैल्यूज के बेसिस पे प्रोटीन्स को अलग करता है, उनकी डिफरेंट पीआई की वैल्यूज पे सेपरेट करता है प्रोटीन्स को. यूजुअली IEF is performed in thin test tubes. The pH gradient is set up within the IEF gel by the inclusion of polymeric buffers known as ampholites. pH gradient सेटअप किया जाता है पतले नैरो ट्यूब्स में, और इनको आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का जेल जो होता है उसके अंदर पॉलीमेरिक बफर्स डाले जाते हैं जिन्हें अमाइलो एम्फोलाइट्स कहा जाता है. These like proteins have been many positive negative charges, hence varying pH. इनका pH बहुत अलग अलग होता है. Because of their smaller sizes they move rapidly in the electrophoretic run, setting up of pH gradients when they come to rest at specific distances from the anode and cathode when they have no net charge. तो यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं वो अपने साइजेस के हिसाब से स्मॉलर साइजेस जल्दी जल्दी मूव करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटिंग में रन करते हैं पीएच ग्रेडियंट्स में, और जब वो रेस्ट पे आते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाकर रुक जाते हैं फ्रॉम द एनोड और कैथोड जब उनके पास कोई चार्ज नहीं होता. प्रोटीन सैंपल फ्रॉम अ सेल और एनी अदर सोर्सेज देन इलेक्ट्रोफोरेस्ट विद इन दीज ट्यूब्स wherein the different proteins separate and migrate to their PI zones. फिर जब इनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करी जाती है तब इनको ये अपने पीआई जोन्स में चले जाते हैं. द ट्यूब कंटेनिंग द सेपरेटेड प्रोटीन इज देन लेड ऑन एसडीएस पेज स्लैब जेल. उसके इस ट्यूब को तब स्लैब पे रख दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के, और कंटिन्यू किया जाता है राइट एंगल टू देयर IEF डायरेक्शंस. एसडीएस पेज में प्रोटीन सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज and hence the end of this electrophoretic run protein are separated into 2D patterns with high resolution as two properties of the protein have been exploited in their separation, charge and size. Proteins in the gel are stained with the silver stains so other highly sensitive dyes can be scanned and pictures stored on a computer database for analysis. प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करने का ये मेथड है. कंडीशन ए कंडीशन बी. Solubilizing the proteins from the cell and isoelectric focusing is done and then it is kept on the SDS page slab gel, and after that it is run in the gel. The firstly it is proteins are isoelectrically focused, means charge separation is done and then their size separation is done by the SDS page, and then staining is done by the silver comesi fluorescent autoradiography, and then database के में information store करी जाती है. Excision of spots of the interest, identification of the protein corresponds to the selected spots. Isolation of protein from a microbial culture plant animal source involves various separation techniques and these separate steps are collectively known as downstream processing. कोई भी प्रोटीन या हम माइक्रोबियल कल्चर से प्लांट या एनिमल सेल से अगर आइसोलेट कर रहे हैं तो बहुत सारी सेपरेटिंग टेक्निक्स उसमें लगती हैं और इन सारी सेपरेटिंग टेक्निक्स को मिलाकर बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. In spite of large biodiversity of microbes, we are restricted to certain bacteria's enzyme which can be used as source of protein as well as for introducing genes. तो बायोडाइवर्सिटी तो होती है माइक्रोब्स के सब जो रिलीज होता है प्रोडक्ट, बट उसके अंदर हमें सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, हमें जीन्स के लिए स्पेशली ये करना पड़ता है क्योंकि हम जीन्स से डील कर रहे हैं बायोटेक में. These microorganisms are designated as generally regarded as safe. इनसे वर्क करना GRAS के अंदर आता है. GRAS होते हैं जो माइक्रोब generally regarded as safe. GRAS listed organisms are non-pathogenic, non-toxic and generally should not be produced any antibiotics. तो GRAS ऐसे माइक्रोब है, इनकी लिस्ट है एक के वो माइक्रोब्स जो जनरली सेफ है, ये नॉन पैथोजेनिक है, नॉन टॉक्सिक है और इनको एंटीबायोटिक्स भी नहीं बनाते. सिमिलरली प्लांट टिश्यू डिराइव्ड एंजाइम्स हैव एप्लीकेशन इन द फूड इंडस्ट्री, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली नॉन टॉक्सिक एडिबल
एडिबल पार्ट्स, एंजाइम्स भी ऐसी प्लांट बेस्ड टिश्यू डिराइव्ड एंजाइम्स रिलीज करी गई हैं जिनकी फूड इंडस्ट्री में भी ऑब्टेन्ड करी जाती है, फूड इंडस्ट्री के लिए भी, फ्रॉम ओनली नॉन टॉक्सिक एडिबल प्लांट स्पीशीज. वन ऑफ द बेस्ट नोन इंडस्ट्रियली यूज full enzyme is papain, obtained from the latex of the green fruit and leaves of the papaya tree. पेपेन हमें लेटेक्स से मिलता है, ग्रीन फ्रूट के, ग्रीन पपाया के, कच्चे पपाया से मिलता है, और लीव्स से भी मिलता है पपाया ट्री के. दिस एंजाइम फाइंड्स एप्लीकेशन मीट टेंडराइजिंग, क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, डाइजेस्टिव एड्स एंड वुंड क्लीनिंग सोल्यूशन. ये घाव को भी क्लीन कर सकती है, टेंडराइजेशन करती है मीट की, और तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. So with this, we have discussed some techniques which are used for separation of the purification of the proteins. Then we have also discussed in this 2D gel electrophoresis. We have discussed two-dimensional protein fingerprinting. Then we have discussed the molecular disease sickle cell anemia, yeah, how it is different from the, how sickle cell hemoglobin is different from the normal hemoglobin in its hydrophobic residue. This all we have discussed. So I am ending my chapter over here. This session. Thanks for patient listening. If you like the video, then like my channel, press the like button and share the video with the biotechnology students. Thank you.